Okay, so guys, very good evening to all of you. In the last class, हमने क्या डिस्कस किया? We specifically discussed distance time and displacement time graphs in detail. You remember that? Also, also in detail, I taught you something very, very important. The difference between the scalar and the vector quantities, the actual difference between the scalar and the vector quantities. And in today's lecture, we will specifically cover velocity time, speed time graphs for different situations, also in my own way. And also the basic difference between the velocity time and the speed time graphs, कि कहाँ पे ग्राफ्स सिमिलर रहते हैं और कहाँ इनकी ग्राफ्स की नेचर में बिल्कुल यू टर्न डिफरेंट आ जाता है. Again, the instructions are very clear. You have to be on the top of your game mentally. I don't need anyone to have any kind of distraction. If you're a guy who cannot focus, I think that better of you do not attend this workshop. You can see the YouTube recording. But if you're listening to me live, because then you can have doubts also, then I need 100% focus for the next 1 hour. Are you guys with me? I hope you had your dinners. Yes, In yes, case you do sir. not had your dinner, खाना भूख लगी है तो साथ साथ you can have some light stuff or whatever it is. So now today we talk about velocity time graphs, and I'm not going to waste any further time. So you have to give me 30 seconds. I'll pair my tablet with my Mac. So just give me a sec. जा भाई क्या हो गया तेरे को? I think this the internet is a bit slow today. I think we have managed it. Okay, so all of you can see my tab. All of you can see my tab screen. Yes, sir. Yes, Great. sir. So now we keep ourselves in mood and let's get started now. So today we talk about, we'll start with the velocity time and the speed time graphs. Now understand this. Now, मेरी पूरी वर्कशॉप्स की एक ही बेसिस पे गेम बनी हुई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. Now, we all know slope. I've discussed it in the last two classes, the third class. That's why this is day 3. Slope basically is a concept जहाँ पे हम लाइन का एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइन की ढलान कितनी है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू फोकस नाउ. लाइन की ढलान कितनी है? सो व्हेन आई से ढलान मतलब स्टीपनेस कितनी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पावरफुल मंत्र सिखाया था, जेनेसिस मंत्र, दैट अगर आपने ये चेक करना है कि किसी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, तो आप क्या करो, वाई एक्सिस की क्वांटिटी के यूनिट्स को, विच इज मीटर पर सेकेंड, को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी के यूनिट से डिवाइड कर दो, विच इज सेकेंड इन दिस केस. आपके पास बन जाएगा मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपके पास स्लोप, ये किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का. सो द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन. सब मेरे साथ हो, आई नो दैट. ठीक है. सो विच मीन्स व्हाट, इन टुडेज लेक्चर वी वुड बी टारगेटिंग द वीटी ग्राफ्स under the context of the acceleration situation. What can be the different situations of acceleration, or what can be the different situations of the velocity? I repeat the mantra for those of you who did not attend the last class. एक सिंपल सा मंत्र है जो मैंने बचपन में बनाया था, अपने बचपन में एज इन व्हेन आई स्टार्टेड जेनेसिस, कि यार अगर अपने को ये कंफ्यूजन हो रही है कि अपने को ये नहीं याद रह रहा कि कौन सी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक सिंपल सा मंत्र है जो कहता है वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी प्लॉट की हुई है उसके यूनिट्स को आप न्यूमरेटर में लिख लो, और उसको एक्स एक्सिस जो क्वांटिटी प्लॉट की हुई है उसके यूनिट को डिनोमिनेटर में लिख लो. अब आपके पास जब यूनिट्स, आप इन यूनिट्स को डिवाइड करो, आपके पास एक नया यूनिट बन जाएगा. जो यूनिट बन रहा है वो जिस क्वांटिटी का यूनिट है वो स्लोप देगी. यानी कि अब मेरा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है यूनिट डिवीजन के बाद, जो एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये क्या हो गया? तो देयरफॉर 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 Therefore, the slope of VT graph gives the acceleration. I'm so sorry for the goof. पता नहीं मेरे जो मैंने लिखा था कहाँ चला गया.
चलो कोई बात नहीं. So let's get started with the first situation. Let's assume यार कि एक बॉडी है. केस वन बॉडी जो है, फटाफट से करेंगे क्योंकि मेरे को आज बेसिक लेवल कम कराना है, थोड़ा एडवांस लेवल कराना है, बट पहले फटाफट से बेसिक करते हैं. बॉडी एट रेस्ट. बॉडी रेस्ट का मतलब है बॉडी रुकी हुई है. बॉडी रुकी हुई है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है. आर यू गाइस विद मी? मुंडिया हिलाओ फटाफट से. सो आई विल ड्रॉ टू ग्राफ्स फॉर यू. I'll draw two graphs for you, and I want anybody who is scrolling useless Instagram or Snapchat or Reels. तो मेरे को मेरी क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है बेटा. It's better you waste time and watch YouTube. Don't do I wash. So now मैं दो ग्राफ्स बना के बताता हूं आपको. Let's see who figures out which is this graph. Velocity zero. One is this graph, the blue horizontal line, and the other is the red horizontal line that I'm drawing on the x-axis. Raise your hand, Sanyam. What are you doing with my screen? Don't dare to write it on my tablet. Okay, which is the correct situation for the VT graph for a body at rest? और जिसने भी ये लिखा था उसको फटाफट से हटाओ अपने उसको, इससे पहले मैं आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूं. What do you say, Shirza? Which is the right answer? Blue or red? For the blue line. The blue line. Okay. Khwaish? Sir, the blue line. Blue line. Anybody who says the red line? अपना हाथ नीचे कर लो. बाकी सारे जिसका हो गया. The body is at rest. Anybody? All of you agree with that the answer is blue line? Kaina, do you agree? Yes, sir. Anyone who disagrees? I repeat the red. Only one guy says red. Samsung SM. So let's see this now. The answer is a red line. Blue is the wrong answer. Let's understand this. This is a very simple mistake that you have made. मैंने आपको बोला मुझे वो केस बनाना है जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है. जीरो का मतलब हुआ वेलोसिटी बेटा है ही नहीं. अगर मैं ब्लू वाली लाइन को मान लूं कि ये वाला ग्राफ सही है तो बेटा इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो वेलोसिटी है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो वेलोसिटी हमेशा 20 ही रह रही है. तो गलत है. मेरी सिचुएशन थी वेलोसिटी है ही नहीं. है ही नहीं का मतलब वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जीरो मतलब मेरा ग्राफ कहां बनेगा बेटा? मेरा ग्राफ बनेगा along the time axis, because if you see along the time axis जो मैंने रेड हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बनाई है बेटा जी, उसमें किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं आपको यहां टच करूं, आपका वाई इंटरसेप्ट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है. अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, हर जगह यहां पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. तो दिस इज द केस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. Everybody keep yourself on mute. Last warning. I can still see some disturbance. Are you guys with me with the concept? जो आप बोल रहे हो बेटा वो है ये वाली सिचुएशन जो आप लोगों ने बोला ब्लू लाइन वाली, वो है बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. प्लीज फंडा समझो. एक बच्चा है उसके हर टेस्ट में 0 नंबर आते हैं, वो ये बच्चा है. और दूसरा बच्चा है जिसके हर टेस्ट में कांस्टेंट मार्क्स आते हैं, मतलब एक जितने, मान लो 20 नंबर हैं हर टेस्ट में पूरे साल जेनेसिस में उसके 40 में से 20 आ रहे हैं. और एक बच्चा है जिसके 40 में से 0 आ रहे हैं. क्या दोनों बच्चे सेम है? आप 0 वाले को 20 बोल रहे हो, 20 को 0 बोल रहे हो. ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर. सो गलती फर्क बेटा. कॉन्सेप्ट समझ आया? आद्रिका, व्हाई यू नॉट पेइंग अटेंशन? बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया? नवी सिंगला, guys, is the concept clear? Is the concept clear? This is the, I repeat, notes बनाने में help हो जाएगी बाद में. This is the situation, green से mark कर रहा हूं, when the body is at rest. Whereas this is the situation when the body is moving with a uniform velocity. Also इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका समझो. मैंने थोड़ी देर पहले बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन.
नाउ बॉडी चाहे रेस्ट पे हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, थोड़ा डीप भी है, एंड यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फिजिक्स क्लासेस इन द ऑनलाइन मोड। आपके फोकस बहुत हाई चाहिए मुझे बेटा। इस केस में अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाय टी। अगर v और u सेम है तो ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ऑल्सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप इज जीरो, बिकॉज ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसकी ढलान जीरो है। तो अगर ढलान जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि ढलान ही एक्सेलरेशन देती है वीटी ग्राफ की। एक मिनट दे रहा हूं यहां तक ऑब्जॉर्व करने के लिए। कोई डाउट है प्लीज पूछो बेटा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बेटा। आई रिपीट, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल मेरे बच्चे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैक्सिमम आप में से सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया, द बॉय विद द सैमसंग आईडी। दिस दिस केस इंडिकेट्स बॉडी इज एट रेस्ट, लाइक ख्वाहिश रुकी हुई है, एंड विनीत इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये विनीत का ग्राफ बनेगा, ये ख्वाहिश का ग्राफ बनेगा। आप सब मेरे साथ हो? आर यू गाइस विद मी? Yes. फर्क समझ आया? Yes. लेकिन दोनों दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? सर स्लोप जीरो है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। किसने बोला ये? कौन है धर्मात्मा टाइप का बच्चा? पीयूष ने। पीयूष आपने बोला? ओके पीयूष, वेरी गुड। Yes. दोनों केसेस में स्लोप जीरो है, बिकॉज बेटा चाहे एक लाइन, इधर देखो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, चाहे ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, चाहे ये लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इन दोनों लाइन की ढलान कितनी है? जीरो। और दोनों केसेस में चाहे बॉडी रेस्ट पे है, इधर देखो, चाहे बॉडी रेस्ट पे है और चाहे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कितनी है? यस और नो? रुकी हुई बॉडी एक्सेलरेशन जीरो, चलती हुई बॉडी एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक ही वेलोसिटी चल रही है। गाइस आर यू विद मी? तो दो केसेस करे हमने। फर्स्ट केस वाज द बॉडी इज एट रेस्ट, द सेकंड केस वाज द बॉडी वाज मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वी हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट केस नाउ। दिस इज केस नंबर 3 नाउ। केस 3, केस 3 is very interesting and very easy. Body moving with uniform acceleration. And case 4, body moving with the uniform retardation. Please pay attention. I want you to pay a lot of attention. Very easy cases, but very important. यार मुझे मेरे आप okay. Okay, now please pay attention. यार आप लोगों को टैबलेट पे कुछ अजीब सी लाइनें दिख रही हैं which are not making sense? Yes, sir. Who is Yes, sir. who is drawing it? Yes. Yes, sir. Who the hell is drawing it? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक, मुझे नाम पता लग जाएगा। बाहर निकालो पहले मीटिंग से। Guys, last warning. Don't do it. Okay. Now, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, which means what? स्लोप कांस्टेंट है। यस और नो मेरे बच्चे? क्योंकि वीटी की स्लोप क्या देती है बेटा जी? Yes, sir. एक्सेलरेशन। अब मैंने बोला एक ऐसा सिचुएशन बनानी है वीटी ग्राफ की जिसमें स्लोप कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ड्रॉ, देखो अंडरस्टैंड करो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन जो आ सकता है, प्लॉट द वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मेरा सोच, जो जेनेसिस का स्टूडेंट है वो क्या वो उल्टा सोचेगा।
वो कहेगा यार ओके बेसिकली मुझे उसने बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ है, यानी कि अब वीटी और एक्सेलरेशन में क्या लिंक है कि वीटी की स्लोप एक्सेलरेशन देती है, तो वीटी की स्लोप एक्सेलरेशन मतलब मुझे कांस्टेंट स्लोप चाहिए। अब कांस्टेंट स्लोप का मैंने तुम्हें डे वन की वर्कशॉप में हमने केस किया था। दिस इज द केस व्हेन अ ग्राफ इज ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, व्हेन दिस एंगल इज कांस्टेंट, this is the situation where the acceleration is constant. That means the body's velocity is increasing at equal rates. Because what is the definition of acceleration? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. अगर velocity का rate मतलब पहले मेरे पास पांच, अंडरस्टैंड दिस, एक टेस्ट में एक बच्चे के नंबर, मान लो शिर्जा के मार्क्स एक टेस्ट में 25 में से 5 आए, शिर्जा बुरा मत मानियो, ठीक है। अगले टेस्ट में उसने और मेहनत करी, उसके 10 हो गए। अगले टेस्ट में उसने और मेहनत करी, उसके 15 हो गए। अगले टेस्ट में उसने और मेहनत करी, उसके 20 हो गए। तो आप देखो मार्क्स बढ़ रहे हैं और इक्वल रेट पे बढ़ रहे हैं। हर टेस्ट के बाद उसका स्कोर शिर्जा का 5 मार्क्स से बढ़ा। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर लास्ट में वो टॉप कर जाएगी, 25 बढ़ा 25 ले जाएगी। हर टेस्ट में स्कोर कितने से बढ़ा? 5 से। तो ये वो केस है कि बॉडी की वेलोसिटी इक्वल रेट पे बढ़ रही है। इक्वल रेट पे बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और वो कौन सा ग्राफ है जब स्लोप कांस्टेंट होती है? दिस इज द केस विद द ग्राफ स्लोप इज कांस्टेंट। यस और नो? Yes. यहां तक कोई डाउट? यू कैन आस्क अ डाउट। सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम उसे कांस्टेंट नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा, जीरो का मतलब है ही नहीं, कांस्टेंट का मतलब कुछ है। जिसने भी डाउट पूछा है गुड डाउट। जीरो का मतलब क्या है? यू डोंट हैव इट, you have nothing. And constant का मतलब you have something but that is not changing. So there is a lot of difference. Would, so next case clear हो गया बेटा? जिसका भी डाउट था गाइस, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नाउ यस सर। अंडरस्टैंड दिस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब वो कहता है मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वर्ड लगा हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब अब जेनेसिस में यूनिफॉर्म देखो, अब नवी यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, पूरी स्पिरिट से बैठा है, ब्लैक यूनिफॉर्म सबकी सेम है। चाहे आप 20 में पढ़ते हो, चाहे 15 में पढ़ते हो, चाहे गोरखपुर में पढ़ते हो, तीनों की यूनिफॉर्म सेम है। तो एक जैसी है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। तो एक जैसी रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब मुझे एक ऐसा केस बनाना है जिस केस में स्लोप बॉडी की क्या है? नेगेटिव। अब यहां पे मैंने तुम्हें डे वन पे कराया था एक ऐसा ग्राफ जिसमें बॉडी की स्लोप नेगेटिव होती है। दैट इज अ ग्राफ जब बॉडी एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना, ब्लू वाली लाइन, द ब्लू लाइन, याद आ गया? So this graph indicates, please pay attention, यस। this slant line, देखो you can see my, you can see my eye pencil. This line, the horizontal line that is making an obtuse angle with the x axis indicates that the slope is constant. Why constant? मैंने day one पे बताया था, because this angle is still constant. But why negative? Because this angle is obtuse. And whenever angles are obtuse, the slope are negative. ये मैं थोड़ा बड़े होके बताऊंगा। चारों केसेस क्लियर है गाइस? चारों केसेस यस सर। यस सर। श्योर? गुड, ऑसम। सो यस सर। now you want to copy them side by side कि बाद में नोट्स बनाओगे? बाद में बनाना, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो ये 4 केसेस हुए, फिर से देखते हैं। पहला केस बॉडी रेस्ट पे थी, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर बन गई। सेकंड केस बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर बन गई, पैरेलल ऊपर मतलब थोड़ी ऊपर बन गई, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। अगर एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल बन गई। Case 3, body is moving with a uniform acceleration. This is the graph. Slope is constant, but positive slope. This is the graph. Fourth case, slope is constant, but it is negative slope. Acceleration is negative. It's a case of retardation. For example, एक बच्चे के पहले टेस्ट में 25 आउट ऑफ 25 आए, उसको हवा लग गई और देखो मैंने टॉप कर गया। अगले टेस्ट में 20 पे गिर गया, अगले टेस्ट में 15 पे गिर गया, फिर 10 पे गिर गया, फिर 5 पे गिर गया, फिर 0 पे गिर गया। तो उसका ग्राफ ये बनेगा और शिर्जा वाला ग्राफ ये बनेगा।
फर्क 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 समझ आ गया? एक में नंबर बढ़ रहे हैं, एक में नंबर घट रहे हैं, एक में नंबर जीरो थे, एक में नंबर कांस्टेंट थे। समझ आ गया? समझ आ गया हो? ऑसम। Yes, sir. गुड। Yes, sir. एक मिनट दो मुझे। ये कहाँ पे निशान पड़ रहे हैं? चलो देखी जाएगी, समझ आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। मैं ग्राफ बनाऊंगा, अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक सिचुएशन समझते हैं। एक बॉडी अपने घर से, एक बंदा एक अपने घर से जेनेसिस आया विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट रहता है दूर जेनेसिस से। फिर वो मान लो 20 मिनट जेनेसिस रुका, और फिर वापस अपने घर चला गया, सेम स्पीड से 10 मिनट में घर पहुंच गया। घर, आप सबका एक टास्क है, आपके पास 3 मिनट है। इन योर नोटबुक्स ड्रॉ द स्पीड टाइम एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रफ बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक तो ठीक, गलत तो गलत। ड्रॉ द स्पीड टाइम एंड द VT's टाइम ग्राफ for a situation when a boy travels at a speed of 10 meter per second from his home to Genesis, and then stays at Genesis for 20 minutes, comes back to his home at 10 meter per second for another 10 minutes. You have to draw a speed time and the velocity time graph for the same. 3 मिनट है आपके पास। सर कांस्टेंट स्पीड से आया, मतलब सेम स्पीड से आया और सेम स्पीड से गया। जी बेटा। Rag, you've done it. Good. Wait, let's wait for others. Hands down. You can chat पे मुझे मी भेज दिया करो, मी, ME। मी मतलब आपने कर लिया। विनीत, आपने कर लिया बेटा? Yes, sir. Great. Vamika has done it. Japlin has done it. टाइम सेकंड्स में, ऑब्वियसली टाइम सेकंड्स में लोगे। विधि ने कर लिया है। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस दिस। रिजल्ट्स कर लिया, प्रज्वल ने कर लिया। ओके गाइस, टाइम अप। आई ड्रॉ इट एंड बी ऑनेस्ट, एंड बी वेरी ऑनेस्ट, इसका ठीक है। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट ऑनेस्टी।
एनीबडी जिसके दोनों ग्राफ्स ठीक है? सर स्पीड एंड टाइम वाला ठीक है, वेलोसिटी आई सेड टाइम वाला। एनीवन जिसके दोनों ग्राफ ठीक है। नो वन? सर जहाँ पे आपने 30 लिखे है, सर जहाँ पे आपने 30 लिखा है वहां पे मैंने 20 लिखा हुआ है। बाकी सारा ठीक है दोनों? यस सर। कौन है आप कौन है बच्चे? सर शिल्पा। शीर्षा, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। लेट्स स्पीड इज नवी, प्लीज पे अटेंशन। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लास्ट क्लास में पढ़ाया स्केलर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पहले बॉडी अपने घर से, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन गाइस, नाउ पेन्स डाउन एंड लुक एट द स्क्रीन। घर से जेनेसिस गई, सॉरी घर से जेनेसिस आई 10 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए। फिर वो 20 मिनट रुक गई तो 10 में 20 सेकंड रुक गई तो 10 में 20 को ऐड कर दिया, 30 सेकंड हो गया। पर वो यहां से यहां रुकी रही तो स्पीड 0 हो गई। फिर वो वापस गई, लेकिन स्पीड वापस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड डज नॉट हैव एनी साइन। तो वापस सेम स्पीड से गई, तो 30 से 40 यानी कि अनदर 10 सेकंड्स के लिए वो सेम स्पीड से गई। वेर एज जब वापस वेलोसिटी टाइम में लास्ट पार्ट आएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वापस आएगी वेलोसिटी, तो लास्ट क्लास में बताया था वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब आप जेनेसिस से घर जाओगे तो ऑब्वियसली आप घर की तरफ जा रहे हो, और जब घर से जेनेसिस आए थे तो आप जेनेसिस की तरफ आ रहे हो। इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए दिस इज अ वेरी 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 क्रिटिकल ग्राफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू केसेस। मैं बहुत कम क्वेश्चंस कराऊंगा वर्कशॉप में, पर एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। समझ आया? ओके गाइस, फॉर द नेक्स्ट मीटिंग दो वी स्टिल हैव टाइम, मैं आपको अगली मीट, बिकॉज ये रैंडमली मीटिंग एंड हो जाएगी, आई एम गिविंग यू द डिटेल्स। मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन राइट अवे। फिर तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते सेकंड पार्ट, फिर रोते हो कि हमारा सेकंड पार्ट मिस हो गया। प्लीज नोट इट अवे राइट अवे बेटा, फिर प्लीज परेशान मत होना। Note it down. The moment this meeting ends, join that in 2 minutes. This with these details. Chat पे भेज दिए मैंने। 7696016405 is the username. That's Genesis 20 का phone number and password is Genesis. सिर्फ फोन नंबर इज इट, वहां पे वो जो हाइफन है वो नहीं है, सिर्फ फोन नंबर 7696016405 is the username and password is Genesis. Please understand this. Now coming back to this question now. इससे एक और चीज समझो, देखो देखो मैजिक देखो गाइस, ऑल ऑफ यू, द मैजिक नाउ। वेलोसिटी टाइम का एरिया एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, सबको पता है। अब यहां पे मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं मंत्र नंबर 2, जेनेसिस का मंत्र 2। स्लोप के लिए हमने एरिया यूनिट्स को क्या किया था? डिवाइड। एरिया के लिए क्या करना है? यूनिट्स को मल्टीप्लाई। जब आप दो एक्सिस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो यूनिट बनता है, आओ देखें, वेलोसिटी वाले एक्सिस पे मीटर पर सेकंड है, टाइम एक्स वाले एक्सिस पे एस है। मीटर किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी टाइम का एरिया वेक्टर क्वांटिटी देगा, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। और स्पीड टाइम का एरिया डिस्टेंस देगा। अब यहीं पे छुपा था और कॉन्सेप्ट। इस ग्राफ का एरिया, इधर देखो, बहुत मैजिकल है बेटा, गेम चेंज होने वाली है, मजेदार मजेदार नोट पे ये वाला पार्ट एंड होगा। इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? इधर देखो, दिस रेक्टेंगल का, स्क्वायर का एरिया विच इज 100, 10 × 10, ये इसका तो 0 हो गया, प्लस इसका एरिया विच इज अगेन 100, तो टोटल एरिया हो गया 100 प्लस 0 प्लस 100, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ? 200। ये समझ आ गया? आप जेनेसिस से घर से जेनेसिस गए, 100 मीटर ट्रैवल किया, वहां रुके, वापस 100 मीटर ट्रैवल किया, तो 100 प्लस 100 कितना हुआ? 200 मीटर। डिस्टेंस स्केलर है, आओगे और जाओगे तो डबल हो जाएगा।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। आप जब अपने घर से जेनेसिस गए, ये एरिया कितना हो जाएगा? 100, फिर से 100 होगा, 10 10 जा। बट ये एरिया कितना हो जाएगा? -100, बिकॉज ये -10 है। तो व्हाट इज 100 प्लस 0 प्लस -100? दिस इज 0। और वो 0 होना भी चाहिए था, बिकॉज वीटा वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। और जब आप अपने घर से जेनेसिस गए, जेनेसिस से वापस घर आए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट्स 0। क्यों? समझ आया guys? Are you getting the magic of physics? तो आप खुद से क्रॉस चेक कर सकते थे कि क्या आपका ग्राफ जो आपने वीटी मुझे बना के दिखाया था, जो सबने गलत बनाया अनफॉर्चुनेटली, वो सही था कि नहीं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया बेटा जी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। हर बच्चा ये बना लेगा स्कूल में। आप किसी भी कल फ्रेंड को फोन पे दोगे, वो कहेगा हाँ यार ये बना लेगा। ये बहुत कम बच्चे बना पाएंगे एग्जैक्ट वीटी ग्राफ। सबको समझ आया? कौन मुझे गुस्सा कर रहा है? गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? So Yes, sir. it's very easy to understand what are scalars, what are vectors. Everybody, मैंने पिछली बार भी इस पे 15 मिनट लगाए थे, 10 मिनट लगाए थे। बट when you understand them through graphs, you understand them. कोई फायदा नहीं है किसी नॉलेज का अगर हम उसको राइट क्वेश्चन पे नहीं लगा सकते। चिराग समझ आया? आदर का समझ आया? नवी समझ Yes, आया? sir. संयम समझ आया? आई एम ओनली टॉकिंग टू द किड्स जिनकी वीडियोस ऑन है। दिस आई डोंट गिव। इवन इफ यू आर नॉट ऑन, आई एम नॉट ऑन विद यू। शौर्य क्लियर हो गया बेटा? खुशबू, धैर्य क्लियर है Yes. बच्चे? कायना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Awesome. So this is very important to understand the difference between scalar and vector quantities. And graph gives a beautiful way. Clear? Let's join in 1 minute for the ID which I've given to you, and we'll discuss some more very, very, very interesting cases, and we'll continue. So what you need to do is I'm dictating you a question. All of you write it and solve it. ठीक है? Open your notebooks. एक question discuss करते हैं. And let's get cracking. I want 100% focus and attention like the real Genesis army. Awesome. All set, guys. Proud of you. Proud of you. The numerical. A body is moving. You can write it in the short form also. A body is moving with a velocity of 20 meter per second for 5 seconds. 20. Sir, can you repeat? A body is moving with a velocity of 20 meters per second for 5 seconds. And then in the next 5 seconds, it comes to rest. It comes to rest with a uniform retardation. कान खोल के सुनो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. It comes to rest with a uniform retardation. And now, in next 5 seconds, it accelerates to TO. It accelerates to 10 meter per second in the opposite direction.
it accelerates to TO at 10 meter per second in the opposite direction. Plot the velocity time graph and find the displacement of the body. Plot the VT graph, the velocity time graph plot karna hai, and hence find the displacement of the body. Your 3 minutes starts now. Let's crack this question. फोकस से करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा. किसी ने पूरा क्वेश्चन ढंग से लिख लिया है? गुरमन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन फॉर द एंटायर बैच? दो बच्चों ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि रेस्ट ऑफ यू कीप डूइंग योर वर्क. गुरमन इज रिपीटिंग इट. A body is moving with a velocity of 20 meter per second for 5 seconds, and in the next 5 seconds it comes to rest with uniform retardation, and in next 5 seconds it accelerates to 10 meter per second in opposite direction. Plot the graph and find the displacement. Thank you, Gurman. Continue, guys. फोकस से करेंगे, पूरा ध्यान लगा के करेंगे, लाइक अगेन लाइक द जेनेसिस आर्मी. क्या बात है, एवरीबडी रिजॉइंड. नाइस, प्राउड ऑफ यू. Start giving the answer when you return it. Me. राग डन हो गया. कहना हो गया. Yes, sir. Okay, guys, time up. I think with 1 more minute, guys. Last minute. टाइम अप, गाइस. मुझे क्वेश्चन जितना मैंने सुना, मैंने अभी तक पूरा किया. लेट्स सी दिस नाउ. लेट्स सी दिस, गाइस. नाउ कहता है बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20. ठीक बोला है मैंने? ठीक सुना था? 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. सो मैंने बनाया, ये देखो, पहले 5 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड देन it comes to rest in the uniform retardation. तो this part, let's name this as P Q R. कितने सेकंड में रिटार्डेशन करता है बेटा वो? एनीवन कैन हेल्प मी? गुरमन, आप बोलो.
It comes to rest in 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 + 5 10 हो गया गुरमन. उसके बाद And sir, now in 5 seconds, it accelerates to 10 meter per second. okay, so now this is very interesting. Now this will be a graph. ये ग्राफ है बेटा, किस किस का ठीक है. ध्यान से देखो, वो लाइन जो जो रेड लाइन है और ब्लू लाइन है वो आपस में सीधी नहीं आ रही है. वो ऐसी है, पहले रेड ऐसी है तो ब्लू थोड़ी सी इंक्लाइंड है. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. ये पी क्यू क्यू आर आर एस. दिस इज द ग्राफ. एनीबडी हु हैज डन इट राइट? Anyone who has done this right? सर ट्राइंगल ही बनाना है मुझे. नीचे ट्राइंगल बनेगा बट थोड़ा सा टेढ़ा सा बनेगा. कहने की बात क्या है, क्यू आर जो आपने चेक करना है अपना आंसर, क्यू आर और आर एस ये एक लाइन नहीं है, अलग दो अलग अलग लाइंस हैं. दिस इज नॉट सीधी नहीं है. क्यू एस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. किस किस का ठीक था? किस किस का पी क्यू और क्यू आर वाला पार्ट ठीक था? पी क्यू पी टू क्यू गुड. चिराग पी टू क्यू गुड. क्यू से आर ठीक था. गुड गुड. शौर्य गुड. वामिका गुड. कायना गुड बेटा. हैंड्स डाउन. बेटा देखो यहां तक तो पी से क्यू और क्यू से हरमन गुड बेटा. पी से क्यू और क्यू से आर तो सबका ठीक होना जरूरी है बेटा, क्योंकि वो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि पहले बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है. तो अगर आप रेस्ट से कई कई अगर अगर किसी बच्चे ने सेंटी को ये कर दिया है तो क्यों किया आपने? आप बेवकूफ हो क्या? कहाँ दिया है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है? उसने क्लियर बोला है बॉडी इज मूविंग. मतलब जब आपने देखना शुरू किया इस बॉडी के मोशन को, वो ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी. तो ऑब्वियसली इट इज ऑलरेडी मूविंग. तो आप कितनी देर के लिए चली? 5 सेकंड के लिए चली. तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. आज का जो केस 2 था. उसके बाद उसने कहा इट इज एन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब स्लोप नेगेटिव होगी और वो रिटार्डेशन होगी और वो 20 से 5 पे 20 से 0 पे आई, रेस्ट पे आई ना, तो अगले 5 में 5 सेकंड और ऐड कर दिए. तो ये होगी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ये देखो चेक करो क्यू आर. अब यहां तक समझने के बाद अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने बताया, अब वो आर पे आके रेस्ट पे आ गई है. अब उसने एक्सेलरेट किया, लेकिन उसने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया. ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के बाद मतलब वो पहले अगर इधर देखो समझो, पहले इधर जा रही थी कांस्टेंट स्पीड से, फिर इधर ही गई लेकिन वो स्लो हो गई. अब यहां जाके रुकने के बाद उसने वापस आई, तेज हो गई. बट तेज हुई तो बट वापस हुई. वापस का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव लूंगा मैं, -10. अगर होता स्पीड टाइम ग्राफ, इधर देखो, इधर देखो, अगर यही होता प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, तो मेरा ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता. ये वाला पार्ट, ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनता तो मेरा ये वाला ग्राफ बनता. ये एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट चेंज हो जाता, ग्रीन शेडेड आता. उसमें मैं क्या करता, डिस्टेंस निकालता. कैसे डिस्टेंस निकलता? इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ग्रीन ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों के एरियाज को ऐड करूंगा, डिस्टेंस आएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका एरिया चेक कर लो भाई और बहनों, इसका एरिया ऐड होगा और इस ट्राइंगल के एरिया से सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो वापस आ रही है तो इनिशियल पॉइंट के पास आ रही है बॉडी, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी. पिछला क्वेश्चन भी सिमिलर था. भाइयों और बहनों समझ आ रहा है? Yes, sir. कुछ सीखने को मिल रहा है? Yes, sir. यस सर. यू हैव टू अंडर. देखो स्पीड टाइम अलग बनाओ, वेलोसिटी टाइम अलग बनाओ. इस क्वेश्चन का भी स्पीड टाइम ये है एस डैश वाला, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस डैश. वीटी है पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस. और एक और चीज देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट, मैजिकल, पेन्स डाउन, फोकस अप। मैं कुछ पर्पल कलर यूज करूंगा। ये लाइन सीधी क्यों नहीं है? क्यों नहीं थी सीधी? बिकॉज यहां की स्लोप और यहां से यहां तक की स्लोप सेम नहीं थी। कैसे निकाला स्लोप? इधर देखो, यहां से यहां तक बेटा 20 से वो 0 पे गया। एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप होती है, इधर देखो सारे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्लोप होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये कितना है? 20। और बेस कितना है? 5। तो 20/5, लेकिन नेगेटिव है, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्लोप है ये वाली, ये स्लोप। पी से आर की बात कर, क्यू से आर की बात करी मैंने। लेकिन बेटा जो ये स्लोप थी क्यू से, ये पी क्यू आर से एस की, ये स्लोप है, वो 0 से कहां गया? ये ट्राइंगल में ये चीज 10 है और ये 5 है, और 10/5 2 हुआ, माइनस का 2 हुआ, तो क्या -4 और -2 सेम है? नहीं सेम है। इसीलिए वो जो लाइन थी बेटा, ये लाइन जो थी, रुक जाओ दिखा रहा हूं, वो जो लाइन थी वो ऐसे नहीं आएगी। सॉरी 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 सॉरी, वो ऐसे नहीं आएगी। ऐसे तब आती बेटा, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां से यहां की स्लोप और यहां से यहां की स्लोप सेम होती, लेकिन यहां से यहां का परपेंडिकुलर बाय बेस और यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर बाय बेस सेम नहीं आ रहा था, एज पर द क्वेश्चन दैट आई गेव यू। इसीलिए जो मैंने ग्राफ दिए बना, मैंने चपटा, मेरा थोड़ा सा चपटा बना ग्राफ। ये देखो, ये और ये, क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप सेम नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा बेबा। आई एम गोइंग डीप इनटू द फिजिक्स। समझ आया कि ऊपर से निकल गया? गाइस समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. You see, this is very interesting. It can clarify all your concepts, all your gaps, all your weak areas. And even if you used to feel that I'm very good in physics, I've proved you wrong. And that is what is my role is. I'll keep on proving you wrong till the time you get into the right college in your life. And which is a long time back. Are you guys with me? Yes, sir. हो जाए एक क्वेश्चन और? अब करके दिखाओगे? Yes, sir. Sure? Will you Yes, give your sir. best? Yes, Yes, sir. sir. Let's see this now. Write it down. All of you pay attention. Write the next question. Disturbance नहीं चाहिए मुझे. A body starts from rest. A body starts from rest and attains a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second in 5 seconds at a uniform acceleration. Comma. It then comes to rest in next 5 seconds with a uniform retardation. And now it again accelerates to a speed of 20 meter per second. It again accelerates to a speed of 20 meters per second
in next 5 seconds in the opposite direction. Plot the velocity time and the speed time graph for the journey. Your 3 minutes starts now. Sir, can you repeat the last line? Plot the VT and the speed time graph. अलग अलग बनाओ. Type me when you done it. Rag has done it. Samsung has done it. Samsung boy, what's your name, beta? Can you write in the chat? I should know who are performing well. Daman has done it. Very good, Daman. Dara has done it. Aryan. Okay, Aryan. Good job, Aryan. Shabaz Dara. Shaurya has done it. Last 1 minute, guys. Piyush has done it. Vamika has done it. Kaina, Agrika. Good job, guys. Time up, guys. Time up. Good job. नहीं भी हुआ कोई टेंशन नहीं है. I'm sharing the screen. You can see the screen now. And be honest. किस चीज का ठीक है? Sir. Good job. Only raise your hand if you have done it correctly, both the parts. अब आया कॉन्सेप्ट समझ में. अब नहीं मार खाओगे. कोई भी पंगा ले ले. अब इस केस में hands down. Good job, guys. Proud of you. All of you hands down. अब इस केस में ये ग्राफ, ये लाइन नाम दे देता हूं O P Q R O. इसमें PR सेम लाइन होगी क्योंकि अब स्लोप सेम है. क्योंकि जितना ये इधर 20/5 है, उधर ये भी 20/5 है. समझ आया? किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो बेटा. आई रिपीट, किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो बेटा. डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकालोगे आप. इसका, इस ट्राइंगल का प्लस इस छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी बेटा जी?
इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के पी ओपी क्यू का एरिया चेक करो रेड ग्राफ में, ओपी क्यू का एरिया निकाल के इस छोटे ट्राइंगल के एरिया से सबट्रैक्ट कर दोगे बेटा, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. दिस इज द वीटी ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? Yes, sir. अगर मुझे इसी वीटी ग्राफ से, चेक दिस आउट, चेक आउट द मैजिक, मुझे एटी ग्राफ बनाना हो, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां से देखो क्या करना है। सीबीएसई स्टूडेंट्स, acceleration time graphs are not in your syllabus, but being a Genesis student, I believe everybody should do it because 9th ICSE के syllabus में है। So if a 9th ICSE kids can do it, I believe every CBSE can do it because उम्र आप सबकी सेम है। और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आपकी गलती है, आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज आई बिलीव दैट एवरीबडी कैन डू इट। सो 80 ग्राफ्स इज द सिंपलेस्ट ग्राफ्स। इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हैं साहिल? ओके, व्हाट डू यू नीड टू डू 80 ग्राफ? कुछ नहीं करना, ए और टी को प्लॉट करना है जैसे आप सबको करते हो फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। चेक दिस आउट, मैं मैजिक सिखा रहा हूं। अब ओ से पी एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकलेगी चेक करते हैं, देखो आओ। दिस इज परपेंडिकुलर 20, स्लोप इज परपेंडिकुलर, क्या हो रहा है ये, परपेंडिकुलर, गिव मी मिनट, पाई बेस। यस और नो? तो ये कितनी स्लोप आ गई? 4। तो 4 यहां से यहां तक एक्सेलरेशन इज 4, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4। चेक दिस आउट, दिस गाइस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर P से Q, यहां पे स्लोप कितनी है? अगेन 4 बट -4। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी P से Q, ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो यहां से यहां बनेगा ये ग्राफ। एंड यहां से यहां भी ये वाली स्लोप भी नेगेटिव है बिकॉज -20 पे जा रही है वैल्यू। एक्सेलरेशन को लिख सकते हो आप v माइनस यू बाई टी। v इज -20, u इज 0, t इज 5, तो -20/5 इज -4, तो ये भी -4, तो ये बन गया 80 ग्राफ। यू कैन गिव द वैल्यूज ऑफ टाइम, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। तो ये लाइन -4 पे रहेगी और ऊपर वाली लाइन 4 पे रहेगी। दिस इज द 80 ग्राफ। 80 मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे सिंपल ग्राफ्स होते हैं 80 ग्राफ्स। समझ आया? फिर से देख लो जिसको नहीं समझ आया बेटा। यहां से यहां तक अगर आपको परपेंडिकुलर बेस नहीं लगाना तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, v माइनस यू बाई टी। यहां v कितना है? 20, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम था 5, 20/5 इज 4, तो एक्सेलरेशन आ गई 4। सिमिलरली यहां पे v था u, यहां से यहां तक u20 हो गया, v 0 हो गया, तो v माइनस यू बाई टी, ये भी -4 आ गया। एंड सिमिलरली v माइनस यू बाई टी यहां लगा दो तो भी -4 आ जाएगा, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टली सेम रहेगी। तो यू सी व्हाट कैन वी डू? आप दो तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो वीटी ग्राफ से। या तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो v माइनस यू बाई टी के फॉर्मूला से, या आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर और बेस से, क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप हमें देती है एक्सेलरेशन और स्लोप होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ आया? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो आई थिंक इतना ही करते हैं। किसी को डाउट है किसी लेक्चर में प्लीज पूछ लो, काफी काम कर लिया हमने। No, sir. होमवर्क लिख लेंगे, complete the notes. I'll send you the recording by tomorrow. Ma'am will send you the groups and you can revise it. It's my humble request to please ensure that your notes till day 3 are complete. अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो आपको इस फॉर्म में, इस मतलब आई एम नॉट बीइंग सेल्फ वो प्रेज, आई डोंट बिलीव इन इट, बट इस स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस बुक्स में आराम से नहीं मिलेंगे बेटा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे हैं।
It's a humble request. पहले दिन मैंने तुम्हें बता देता हूँ क्या कराया था. First day in the offline class, we discussed different cases of slope. Last Thursday, the first online class, we discussed the distance time and displacement time graphs and the concept of scalar and vectors, जिसकी वीडियो जेनेसिस के YouTube चैनल पे मिल जाएगी. And today we have discussed the velocity time graphs, different situations, and some mixed questions, and the distinguish between the speed time and the velocity time graphs. Am I clear? Yes, sir. In case you have any doubt, please feel to ask me. Again, as I discussed in the last class, it's important that you're not wasting a lot of time in scrolling stupid social media. Focus on building right habits, focus on building right career, focus on working hard, not being distracted. This is what I expect from you as your mentor. I hope you had your dinner. In case you did not have it, please have it, guys. Thank you so much. Good night. Love you all. Inshallah, take care. God bless you. See you soon in Genesis. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, guys. Bye. Thank you, sir. Yes, sir.